हेलो ऑडियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये हमारा पहला एवीजीसी टॉक पॉडकास्ट है और जिसमें हमारे साथ मिस्टर हरिकांत सोलंकी हैं। एंड हरिकांत सोलंकी जी का लगभग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर एक बार ऑडियंस को हम आप और मैं हाय बोलते हैं। हाय ऑडियंस। हाय एवरीवन। तो सर स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो क्या Sure. आप रेडी हैं सर? यस यस श्योर। या तो सर इस पॉडकास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आपको आंसर देना रहेगा। ये क्वेश्चंस आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और इंडस्ट्री एक्सपोजर्स को रिलेटेड और क्या आप यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहेंगे और कैसे आप सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या फ्यूचर हो सकता है, इन सब चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको भी मजा आएगा और हमारी ऑडियंस को भी मजा आएगा। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मेरा आपसे एक जैसे नॉर्मल सबका हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैं भी आपका सर इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और आपका एवीजीसी इंडस्ट्री में क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एट प्रेजेंट टाइम। Sure, Dugis. First of all, I would like to thanks to invite me on your talk show. Yeah, thank you so much for that. And I'm working since 15 years, almost 1.5 decades in AVGC industry. And right now I'm a entrepreneur. I'm running my own institution, which is actually providing trainings on gaming and AR/VR technologies. And earlier I was started, all these AVG stuff purely as an artist. So I started my journey as a modeling texturing artist in the industry in somewhere around in 2010. And since 2010, I got a lot of opportunities. I got a lot of job roles. I got a lot of projects. And now I'm more a production manager of AVGC industry. So I'm keeping my contribution, continuing the production and academics also. Okay, great sir, great experience sir. And so sir, like what is your educational background, like what you have did in your education, in your past experience? Have you haven't taken the any formal training in this sector? Yeah, I'm a commerce graduate, and along with I'm Autodesk certified also. And I did a diploma in advanced 3D animation and VFX industry. Yeah. Okay, great sir, great sir. So sir, my next question is to you, like what inspired you to enter in this field? Okay, so that is very exciting question, because going into past is like a good it's a good memory for me also. So definitely मैं वो share करना चाहूँगा. Yeah, we want to know, sir. Like, सबकी एक memory है, like in this sector, and the motive of this talk show is like also the same, like to know about the peoples, like कि कहाँ से they started and where they exactly right now in the present time, right? So we are more happy to know about yourself and your past history, sir. So please continue, sir. Yeah. So it is about, like, when I was around 9-year-old. So 9 years. I read, Great, sir. yeah. So I read a chapter in my primary education about the animation. वहाँ पे एक चैप्टर था, आई थिंक जब मैं 4th स्टैंडर्ड में हुआ तब की बात है, एंड इट वाज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमेशन इन वर्ल्ड वाइड. तो वहाँ पे हमने पढ़ा था एक पोएम के बारे में, एक रेम के बारे में, जो एक चिड़िया नहीं चिड़िया थी, और इट्स ऑल The अबाउट Unity one, right, sir? इट्स ऑल अबाउट यूनिटी पोएम. वो आई थिंक सभी के चाइल्डहुड की एक अच्छी मेमोरी रही है. वो दूरदर्शन चैनल हम लोग देखा करते थे उस टाइम पर.
यस सर, आई आल्सो रिमेम्बर्ड लाइक समटाइम्स वो कास्ट हुआ करता था, एक चिड़िया नेक चिड़िया. इट वाज पब्लिश्ड ऑन दूरदर्शन चैनल. यस वहां पे वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करा. एंड जब मैंने उसके बारे में मेरे बुक्स में पढ़ा, और आई लिटरली लाइक यू नो यू कैन से लाइक इट वाज a kick point for me, or it was a very emotional point for me, like how animators are built, 1 second movie or 1 minute movie, and how they actually sketch one individual frames. उनको एक एक फ्रेम बना के पूरा उसको 1 मिनट की मूवी में बनाना होता था. तो मेरे लिए बहुत क्यूरियस था कि वो कैसे इतना, बिकॉज आई एम मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा है स्केचिंग में, पेंटिंग्स में, क्राफ्टिंग्स में. बट व्हेन वी वाज किड्स, तो हमें हमेशा क्यूरियस पॉइंट रहता कि हम जानते तो हैं बट उसको करें कैसे, लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. तो स्केचिंग में तब भी करता था, छोटे छोटे स्केच हमने बचपन में भी बनाए हैं, पर उसको मूवी फॉर्म में मतलब इम्प्लीमेंट करना इज लाइक इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस. तो मेरे लिए हमेशा क्यूरियस पॉइंट था कि एकेडमिक्स के साथ साथ मैं ये भी एक्सप्लोर करूं कि मैं अपने हॉबी को या अपने उस किक स्टार्ट पॉइंट को कैसे मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो मैं उस एक चैप्टर के मैं उस चैप्टर के एक स्टेटमेंट को लेके आज तक अपने साथ अपने एक पैशन के लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ. और वो तो सर हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट और एक ऐसा एनिमेशन था जिसने आपको इंस्पायर किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए. इनिशियली दैट वाज, बट आगे भी लाइफ में मैं कुछ चीजें जब ऑब्जर्व करता रहा, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट रहता था. तो मैंने जैसे एक और मूवी थी, इसमें एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी, दैट वाज काइंड ऑफ एट वीएफएक्स मूवी एट फॉर दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे प्योरली वीएफएक्स नहीं होता था. तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक 3D कैरेक्टर, कार का एक कैरेक्टर जिसको मूवी के अंदर एक सॉन्ग में यूज किया गया. तो उस टाइम वीएफएक्स जैसी चीज नहीं थी, बट हाँ फिर भी हम 3D को एक रियल लाइफ कैमरा के साथ शूट करके या उसको पूरा एनिमेट करके एक फीचर फिल्म में यूज कर रहे थे. तो दैट वाज सेकंड फेज. तो ऐसे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और मैं उस पूरी लाइक क्यूरियोसिटीज को अपने लेकर करियर में चेंज करता गया. कूल सर, काफी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी हमारे लिए भी, और जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं से भी किसी को भी कोई भी चीज लाइफ में क्लिक कर सकती है. राइट सर. सो इसी से आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि जब आपने लाइक स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में अपना करियर, सो किस तरीके के आपने अर्ली चैलेंजेस फेस किए एज ए लाइक नॉट एज ए स्टूडेंट particularly, and but more about like when you like go into the industry, like that time किस तरीके के आपने challenges face किए सर? So हमारे टाइम पर क्या होता था कि हमारे टाइम पर बहुत ज्यादा इस तरह के इंडस्ट्री पर्सन्स नहीं मिलते थे, या जैसे हम दोनों बैठ के बात करें तो उस तरह के टॉक शोज नहीं होते थे, इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते थे, इंटरनेट बहुत कम था, हार्डवेयर उतने एडवांस नहीं थे. So this is the benefit of internet technology sir. हम लोगों के टाइम पे वो नहीं रही, बट आज के जो यूथ है उनके लिए ये एक तरीके से एक पॉजिटिव चीज है, वो इसका यूटिलाइज कर सकते हैं राइट वे में. पॉजिटिव चीज है, और इवन इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट बिकॉज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. या एग्री सर. तो हम लोगों को बहुत एफर्ट करना पड़ता था. अगर इफ जैसे मैंने बताया कि मेरा एक क्यूरियस पॉइंट था कि एनिमेशन होता है, बट आई डोंट नो कि कहाँ होता है, आई डोंट नो कि कौन कर रहा है, या लाइक इंडिया के किसी कोने में, हम दिल्ली में कहीं किसी कोने में एक छोटे से प्लेस पर रहते, तो वहां पर शायद कई किलोमीटर तक लोग नहीं होते थे जो एनिमेशन को जानते थे हमारे टाइम पर. सो आई गॉट अ चांस टू सम ऑफ पीपल, मैं उनसे मिला. फिर मैं बेंगलुरु गया उसके लिए. मैंने बेंगलुरु जाके साउथ इंडिया जाके वो सारी चीज एक्सप्लोर करी. वहाँ 1 महीने रहा, कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लोर किया, रिक्वायरमेंट समझी. Then फिर I back to Delhi again. Then again in 2008 I enrolled for this course. तो चैलेंजिंग था मेरे लिए काफी, बिकॉज सोर्सेज बहुत कम थे उस टाइम पर. बिल्कुल सर, क्योंकि उस समय इंडिया में टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा नहीं थी और ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा कम थे आज के कंपैरिजन में. तो बिल्कुल सर. तो सर इसी के साथ में मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जब आप इंडस्ट्री में अपनी एजुकेशन लेने के बाद में जब आप गए,
कंप्लीट करने के बाद में। तो आपने किस तरीके की प्रोजेक्ट्स पे काम किए और किस प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में आपने काम करने स्टार्ट किया? क्या आपने डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में काम करने स्टार्ट किया या फिर आप पहले एकेडमिक्स में रहे, जैसे कि मोस्टली लोग इस इंडस्ट्री में हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआत कहीं और से की, फिर वो प्रोडक्शन में गए, देन प्रोडक्शन के बाद कुछ लोग वापस एकेडमिक्स में आए एंड कंटिन्यू कर रहे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर इस चीज पे? अगेन लाइक इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज जब हम लोग इस ट्रेनिंग से पास आउट हुए तो उस टाइम पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस थे, बिकॉज 2010 वाज फाइनेंशियली दैट वाज वेरी लो फॉर ऑल द कंट्रीज। तो हमारे टाइम पर जॉब्स बहुत कम थी या प्रोडक्शन हाउसेस में प्रोजेक्ट्स बहुत कम थे, सब वैकेंसीज बहुत कम थी। सो आई स्टार्टेड माय करियर एज ए ट्रेनर। मुझे एक ट्रेनर की अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मुझे एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी मिली। उसके बाद हमने उसको एज ए टीचिंग प्रोफेशन मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वहां से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। देन मैंने मुंबई में भी एक कॉलेज के लिए बीएससी एनिमेशन के लिए लेक्चर्स दिए, वहाँ पर भी एज ए टीचिंग में रहा। बट अराउंड 4 और 5 years, सो आफ्टर 4 और 5 years आई रियलाइज कि मुझे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो आई गो बैक टू प्रोडक्शन एंड मैंने एक स्टार्टअप प्रोडक्शन ज्वाइन किया जहाँ पर लाइक वी आर जस्ट 4 persons एंड हम लाइक दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस एंड that was totally related to AR, VR, XR industry. That was not related to animation. सर क्या आप हमें उस प्रोडक्शन हाउस का नाम बता सकते हैं कि कहाँ से आपने स्टार्टिंग की? That was Digital Agents Interactive, Private Limited, and it is run by IITian. That was Mohit Ramani. ओके कूल सर। एंड सर आपने वहां पे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे कि आप एकेडमिक्स के बाद वापस से इंडस्ट्री में आपने किया, और लाइक किस तरीके के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि जब हम एकेडमिक्स में होते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलरली काम करते हैं, पर्टिकुलर टाइप का, बट लाइक प्रोडक्शन में हमें डिफरेंट तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो वो स्विचिंग करने में आपको क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने टैकल किया सर उस चीज को? उस केस में चीजें काफी चेंज रही मेरे लिए, बिकॉज एकेडमिक्स था जो प्योरली क्रिएटिव था, मतलब हम वहाँ पर एनिमेशन रिलेटेड या 3D एनिमेशन रिलेटेड हम ट्रेनिंग दे थे। बट माय फर्स्ट प्रोडक्शन वाज मोर टेक्निकल। वहाँ पे हम एवीजीसी की बात, एवीजीसी में भी जो हमारा स्पेसिफिकली गेमिंग और एक्सआर वाला कैटेगरी है उसकी हम बात करते हैं। तो 3D एनिमेशन को डिलीवर करना वाज सिमिलर, वो मेरे लिए इजी होता, बट क्योंकि वो एक्सआर इंडस्ट्री थी, XR related project, so that was totally on experimental stage at that time. वो एक अर्ली era of XR इंडस्ट्री था जहाँ पे लोग सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल की जा सके यूजिंग 3D स्टफ। तो जितना वो क्रिएटिव था मेरे लिए उतना टेक्निकल भी था। मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सेप्ट किया और मैं धीरे धीरे मैंने क्रिएटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ, मतलब डिजाइन्स के साथ साथ मैंने प्रोग्रामिंग में भी अपना एक थोड़ा सा एक इंटरेस्ट एक्सप्लोर किया और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया। तो इन दैट 3 years आप लगा लो कि स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स भी किए, बिग प्रोजेक्ट्स भी किए एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए, एंड इन 3 years we actually deliver around 30 to 40 projects for that production house. कूल सर। सो आपका काफी लाइक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे आपने काम किया। Strong and struggling, first of all, like because strong and struggling both from scratch. We started an industry which is like a kind of a newborn baby. So वो XR जब स्टार्ट ही हुआ था इंडस्ट्री में। एंड जैसे सर आप बता रहे हैं तो आपने मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कॉन्टिन्यूस आप मोटिवेटेड भी रहे काम करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज लैक ऑफ मोटिवेशन कहीं ना कहीं इंसान को डुबा देता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड भी रहे हैं सर, और ये बहुत अच्छी बात है सर। या इसमें मैं मतलब क्रेडिट देना चाहूंगा कि जो मेरे साथ और मेंबर्स थे या मेरे फ्रेंड्स जो जिन लोगों ने हमारे साथ ट्रेनिंग ली है, कुछ मेंटर्स थे जिन लोगों से हम सजेशंस लेते रहते थे या उनको देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती थी। तो या और जहाँ तक बात है कि एक बार कुछ ऐसे टीममेट्स भी मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मेरे साथ डेफिनेटली ऐसे लोग भी थे। तो उन लोगों की वजह से शायद मैं चीज़ों को और नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता रहा, उनको डिलीवर करता रहा। कंप्लीटली एग्री सर। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सीनियर मेंटर्स से हम मिलते हैं
जो कभी कभार हमारे लिए लाइफ के रोल मॉडल्स भी बन जाते हैं। तो Yes. आपका कोई स्पेसिफिक कोई रोल मॉडल रहा इस इंडस्ट्री में? Yeah, role model, like if I'm talking about the that digital agents in owner Mohit, so that was also kind of a role model because he was started that industry, which is unknown for most of even technical person. तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिनको लोग जानते ही नहीं। तो आई ऑलवेज लाइक गो विद हिम कि ठीक है, मैं भी, मेरे लिए भी कोई एक इस तरह का कोई आईपी होना चाहिए, मैं खुद अपनी एक ऐसी कोई आईपी क्रिएट करूं मार्केट में, कोई आइडेंटिटी क्रिएट करूं मार्केट में, जो कि बहुत ही फ्रेश लेवल से स्टार्ट हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर कि आप अभी एवीसी इंडस्ट्री को प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे देखते हैं? एवीजीसी इंडस्ट्री स्टिल इज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल इंडस्ट्री, अभी भी वो उतनी मैच्योर नहीं हुई है। इवन एवीजीसी को स्पेसिफिकली एवीजीसी में मैं एनिमेशन की बात नहीं करूंगा, मैं एक्सआर की बात करूंगा। तो बिकॉज आई एम मोर इनटू एक्सआर, तो एक्सआर के लिए स्टिल लाइक वी नीड टू डू लॉट ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज फॉर जिससे एक्सआर और ज्यादा एक्सपैंड हो सके, और ज्यादा लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज टेक्निकल पर्सन्स और कमर्शियल्स आर नो कि एक्सआर की क्या इंपॉर्टेंस है, but as a layman, like there are very low percentage in the in India or in even metropolitan cities जो AR VR या XRs को समझते हैं, या उनके रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, या उनके डे टू डे यूसेज को समझते हैं कि उनसे वो किस तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो completely agree with you sir, completely agree sir। like मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एक्सआर इंडस्ट्री के बारे में वाकई में लाइक लेमैन लैंग्वेज पे अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इवन आज के टाइम पे लाइक एवीसी इंडस्ट्री में लाइक एनिमेशन एंड वीएफएक्स तो काफी हद तक लोगों को पता चल गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी लाइक जैसे कि ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स भी कहीं ना कहीं लोगों को फेसबुक के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू पता चल गया है। लेकिन एक्सआर इंडस्ट्री अभी भी इतनी ज्यादा लाइक लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस इंडस्ट्री को लेकर। बिल्कुल एग्री सर आपके पॉइंट से। सो सर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइक आप क्या सोचते हैं और किस तरीके की चैलेंजेस हैं इंडिया में लाइक इंडस्ट्री को लेके, और कैसे उस चैलेंजेस को हम लोग टैकल कर सकते हैं? इसमें सबसे जो मेजर चैलेंज है वो है जो इंडस्ट्री में अभी जो ऑलरेडी आप बोल सकते हो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एवीजीसी इंडस्ट्री थी, या जो गार्जियंस ऑफ द इंडस्ट्रीज हैं, लाइक दे आर still working with very fixed mindset। वो बड़े रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी मैनेजमेंट्स के रोल्स में डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और उनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर हम बात तो करते हैं एक एंटायर एवीजीसी डोमेन की, बट स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग मोर काइंड ऑफ एनिमेशन और वीएफएक्स पर्सन या एनिमेशन वीएफएक्स स्किल सेट। एग्री सर, कंप्लीटली एग्री कि सर ओल्ड स्कूलर्स जितने भी इंडस्ट्री में हैं, मैं उनको ओल्ड स्कूलर्स के लिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइक वो सीनियर्स हैं एंड एक्सेप्टेंस नहीं है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में लोगों में। यस, इवन मैं मतलब काफी सारे मैं कई बार ऐसे कुछ लिंक्डइन पे देखा होता हूँ, बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं जहाँ पर they are asking for tier 1 institutions graduate person who are PhD in augmented reality or virtual reality. So like at my age, at your age, like if we are planning PhDs and we actually graduated since long time back, and at that time animation नहीं हुआ करता था, VFX नहीं हुआ था होता था ग्रेजुएशन में, तो PhD में आपको मतलब XR और VR कहाँ ही होने वाला है। हाँ होगा, बिल्कुल सर। बैचलर्स इवन मुझे जहां तक नॉलेज है कि एंड मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बैचलर्स भी लाइक ज्यादातर पिछले 7-8 साल में ही लाइक स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर ड्यू टू लाइक चेंजेस इन पॉलिसीज। अदरवाइज डिजाइन स्कूल्स हमेशा से रहे हैं, प्रीमियम डिजाइन स्कूल्स लाइक NID, NIIT, वो लोग हमेशा से बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर किया करते थे। बट अगर उसके बाद देखें तो लाइक मास्टर्स प्रोग्राम एंड PhD प्रोग्राम, ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज है। एंड आप बिल्कुल सही है कि लिंक्डइन पे मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लाइक
जॉब डिस्क्रिप्शंस में टायर 1 को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक पीएचडी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, डिजाइन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, जबकि मैन पावर ही नहीं है यहाँ पे। राइट और ये मतलब मैं इसमें ये भी नहीं बोलूंगा कि ये मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये इंडियन एकेडमिक का जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि कॉलेजेस में इतना कंपटीशन हो गया है, दे आर पब्लिशिंग देयर मार्केट वैल्यू एज अ rank 1 college, rank 2 college, NAC grade, and all. There are a lot of things are doing which is more dependent on just certification or document. Even अगर मैं बात करूं किसी ग्रेजुएशन कॉलेज की भी, तो उनको इतना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता ही नहीं है जितना वो एक पीएचडी मतलब पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा नॉलेज, उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड शायद उस इंडस्ट्रियल पर्सन को हो सकते हैं जो पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। But just because of they want to portray themselves on top rank, they are asking PhDs, they are asking PGs from those candidates who are already जो पूरी लाइफ अपनी उन चीजों में दे चुके हैं। तो उनसे ज्यादा नॉलेज, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? अगर हम पीएचडी की बात भी करें, पीएचडी कंटेंट्स या पीजी कंटेंट्स या इवन ग्रेजुएशन कंटेंट्स कब बने? जस्ट बैक जस्ट 5 years back, 10 years back, maximum 10 years back. And एवरेज हम लोग 10 years कंसीडर कर सकते हैं सर। मैक्सिमम एंड हु बिल्ड देम? इंडस्ट्री पर्संस बिल्ड देम। कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री पर्सन के हेल्प से बने हैं। एंड उन्हीं इंडस्ट्री पर्संस के बनाए हुए करिकुलम्स पर अब जो कैंडिडेट्स अब ट्रेंड हो रहे हैं, सो यू आर कंसीडरिंग देम, बट यू आर नॉट कंसीडरिंग देम हु आर एक्चुअली फाउंडर ऑफ द करिकुलम्स, जिन्होंने वो कोर्सेज बिल्ड किए हैं, जिन्होंने वो फाउंडेशन। कंप्लीटली एग्री सर। तो इस सिचुएशन में सर जो नए जनरेशन के लोग हैं लाइक जेनजीज एंड अल्फास, राइट, अगर हम उनकी बात करें तो वो लोग किस तरीके से इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं? क्या उन्हें एक पार्टिकुलर यूजी एंड पीजी डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर उनको मोर ओवर लाइक स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? आपका क्या व्यू पॉइंट है सर इस चीज पे? See, until Indian Academy rules or guidelines will not change, so obviously they have to follow. तो ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गो विद गुड डिजाइन कॉलेज, बिकॉज कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उनको वो सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। सो बट या ग्रेजुएशन इज नॉट इनफ। ऐसा भी नहीं है कि किसी डिजाइन स्कूल से ग्रेजुएट होने से आप इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो सकते हो। आपको कहीं ना कहीं स्किल्ड होना भी जरूरी है, बिकॉज ग्रेजुएशन आपको आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समवेयर उनका जो कंटेंट है, करिकुलम है, दैट वाज मोर एक्चुअली फुलफिलिंग टू एकेडमिक रिक्वायरमेंट, नॉट इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। वो एक एकेडमिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और आपको एक इंडस्ट्रियल एग्री कंप्लीटली एग्री सर। मैंने भी काफी इंस्टीट्यूशंस में टीच किया है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है लाइक एबीजीसी जो टर्म है, इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने लाइक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी जगह में प्रॉब्लम है। कुछ इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ, जिनका करिकुलम एंड जो सिलेबस एंड मॉड्यूल्स हैं वो बिल्कुल ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। लेकिन कुछ डिजाइन कॉलेज एंड कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इस तरीके से लाइक कोर्स स्ट्रक्चर किया हुआ है कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द क्रिएटिव पार्ट ओनली, नॉट द टेक्निकल पार्ट। राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी काम करना चाहिए। So along with the graduation, they can definitely go with any IT company or IT institutes where they can polish their self. सर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। तो सर जैसे कि अब हमने बात किया कि लाइक किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, तो इस सिनेरियो में जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री पर्सन्स हैं, राइट, वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इंडियन एबीजीसी एकेडमिक्स को? इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या व्यू पॉइंट्स है सर आपके? इसमें एक रियल टाइम एग्जांपल तो मैं खुद भी हूँ, बिकॉज मैं अदर ब्रांड्स के साथ ना जाकर मैंने अपना खुद का एक XR इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया इन 2017 से हम वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जरूरी हैं, और कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जरूरी हैं।
तो इंस्टेड ऑफ कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिलीवरीज करें, रादर इससे बेटर है कि हम उनको इंडस्ट्रियल कंटेंट पे डिलीवरी करें. सो वी आर अप्रोचिंग टू कॉलेजेस आल्सो, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिलीवरी मोड है, डिलीवरी टाइप्स हैं, वो बुक नॉलेज की जगह हम प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्रियल नॉलेज पे हम टारगेट करके डिलीवरीज करें. राइट सर, राइट सर. सो सर, आपने बात की यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का. सो आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एंड एजुकेशन को ग्रो करने के लिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अपने जो जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज अभी तक भी हमारे जो करिकुलम्स हैं, जो जो पॉलिसीज हैं, उनमें जितना भी करिकुलम बिल्ड होता है, दैट वाज मोर क्रेडिट बेस्ड, दैट वाज मोर थ्योरेटिकल एग्जाम और ग्रेड बेस्ड एक्चुअली. सो अगर वो अपने पॉलिसीज में इस तरह की करिकुलम्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें जो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा हो, जो स्किल बेस्ड ज्यादा हो, ठीक है. एंड so slowly government already start कर चुकी है, I know that is already going on, but still universities are not accepting that criteria, और अभी भी बच्चों को उस तरीके की एलिजिबिलिटीज में नहीं अभी स्टार्ट किया गया. जैसे अगर मैं बात करूं कि लेटेस्ट जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम क्रेडिट सिस्टम को तो चेंज कर चुके हैं, राइट. लेकिन क्या उस क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट ने अगर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो क्या उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है मार्केट में? जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मिल रही है. अभी गवर्नमेंट्स ऑनलाइन ग्रेजुएशन प्रोवाइड कर रही है, बट गवर्नमेंट तो बोलती है इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री, बट क्या इंडस्ट्री उस चीज को एज ए रेगुलर एक्सेप्ट कर रही है? नहीं. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जो एजुकेशन और कमर्शियल इंडस्ट्री दोनों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल करे और उस क्राइटेरिया को स्टेब्लिश भी करे जो उन्होंने बनाए हैं, या फिर जो वो फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं. गवर्नमेंट इंप्लीमेंट तो करती है बट उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाती इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज अलग ही पैरामीटर्स पर चलती हैं. तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जो दोनों चीजों को बैलेंस करके रखे. राइट सर, राइट सर. एंड कम्प्लीटली एग्री सर. मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ आपके जितने भी आपके स्टेटमेंट्स है उनसे कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड इंडस्ट्री के जो खुद के जो लोग एस्टैब्लिश हैं और जो काम कर रहे हैं उन्हें भी कोलैबोरेटिवली कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. एंड जो लोग इस इंडस्ट्री में जो नया यूथ आ रहा है उसको देखना चाहिए कि कहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल स्किल्स दोनों चीजों, एंड वो उस अकॉर्डिंग अपने इंस्टीट्यूशंस का लाइक सिलेक्शन करे अपने करियर पाथ के लिए. राइट सर? राइट. So, like, sir, what is your personal vision? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कुछ इंडस्ट्री के लिए करने की तो आप क्या करना चाहेंगे सर? In again government policies, are you asking about the government policies? Sir, in terms of anything, sir, किसी भी तरीके से आप क्या करना चाहेंगे अगर लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज मिले? आप ऑलरेडी एक अकेडमी रन कर रहे हैं, राइट सर? अगर आपको और अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आप किस तरीके से और बेहतर करना चाहेंगे? लाइक व्हाट इज योर फ्यूचर विजन सर? That was actually a big goal for me also. मेरा खुद का एक एस्पेक्ट रहा है कि जो अभी हम इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं उसी मोड में, उसी कल्चर में हम एक डिजाइन स्कूल कॉलेज मतलब वटेवर उसको आप किसी भी कैटेगरी में रखो, या आप उसको यूनिवर्सिटी समझो, या बट आई वांट टू गिव अ big infrastructure to our new generations where they can they can actually polish or build their skill more industrial oriented programs. So मेरा खुद का एक रहा है इस तरीके का विजन कि एक ऐसा डिजाइन इंक्यूबेशन सेंटर या डिजाइन स्कूल या डिजाइन कॉलेज बनाया जाए जो कि टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पर, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट हो, या उस तरह के डिलीवरीज कर पाए, रादर देन कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज के पैरामीटर्स को हम फॉलो करते रहें. या एग्री सर. एंड ग्रेट इनसाइट्स सर जो आपने हमें दिए हैं. एंड आई होप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं,
उन लोगों को भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपनी लाइफ को प्लान कर पाए. एंड सो आई एम थैंकफुल सर कि आपने अपना अपना बहुत क्रूशियल टाइम अपने इस पॉडकास्ट पे आने के लिए दिया. एंड आपने अपने लाइफ के बारे में बताया एंड अपनी स्टोरीज के बारे में बताया, अपने इंसाइट्स आपने हम लोगों को दिए. सो थैंक यू सर. एंड आई होप आप कुछ बेहतर कर पाए एवीसी इंडस्ट्री के लिए. एंड आपका कंट्रीब्यूशन कुछ सभी के लिए कुछ ऐसा रहे कि जिससे सबको बेनिफिट मिले. Sure. Thank you, Durgesh. Thank you to invite me. Thank you, sir. Thank you. Yeah.